اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت ہی بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، تیرا تن روح سے نا آشنا ہے، عجب کیا تیری نا رسا ہے۔ تنے بے روح سے، تنے بیزار سے، تنے بے روح سے بیزار ہے حق، خدائے زندہ زندوں کا خدا ہے۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل جی اے رضوی آفیشیل۔ جس طرح ویئرز آپ کو پتا ہے کہ ہم نے سی آر پی سی پر اپنی لیکچر کی سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو آج ہمارا نیکسٹ ویری امپورٹنٹ ٹاپک جو کہ چیپٹر 20 ہے، اور فوجداری وکالت ہو، سول جج کا ایگزام ہو یا اے ایس جے کا ایگزام یا لا کے حوالے سے کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام، ایون کہ ایل ایل بی، لا گیٹ اور لیٹ، چیپٹر 20 جو کہ ان میجسٹریل ٹرائل کو جو ڈیل کرتا ہے کہ ٹرائل آف دا کیسز بائی میجسٹریل کورٹس کو چیپٹر 20 ڈیل کرتا ہے آف دا سی آر پی سی 1898۔ اس چیپٹر میں میجسٹریل کورٹ میں جو ٹرائل ہوتا ہے کریمنل، جو فوجداری مقدمہ میجسٹریٹ کی عدالت میں چلتا ہے، تو اس میں کیا پروسیجر اڈاپٹ کیا جاتا ہے، اس بارے میں سی آر پی سی کیا کہتی ہے، اور اسی طرح سی آر پی سی میجسٹریل ٹرائل کے بارے میں کیا مینڈیٹ دیتی ہے اور کیا ریکوائرمنٹ طلب کرتی ہے۔ تو آئیے اپنا ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں۔ جس طرح میں نے بتایا کہ ہمارا ٹاپک دا کوڈ آف کریمنل پروسیجر 1898 ہے۔ آج ہمارا ٹاپک چیپٹر 20 ہے جو کہ ٹرائل آف کیسز بائی میجسٹریٹس کورٹس، کہ یہ جو ٹرائل ہوتے ہیں میجسٹریل کورٹ میں ان کو یہ چیپٹر ڈیل کرتا ہے۔ اور ہمارے ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں زیادہ تر ٹرائل جو ہوتے ہیں وہ میجسٹریل کورٹ میں ہوتے ہیں یا کورٹ آف سیشن میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آلدو کے آنریبل ہائی کورٹ کو اوریجنل کریمنل جورسڈکشن ہے کہ وہ کریمنل مقدمے کا ٹرائل بھی کر سکتی ہے، لیکن پریکٹس میں ایسی کوئی بات نہیں، اور سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے ٹرائل کے کہ جس کا ٹرائل ہائی کورٹ نے خود کیا تھا، آج تک کسی اور کا کوئی ٹرائل ہائی کورٹ نے نہیں کیا، بلکہ ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں اوفینسز کی کیٹیگری کے حساب سے سی آر پی سی کے سیکنڈ شیڈول کے مطابق کہ اگر وہ اوفینس ٹرائیبل بائی میجسٹریل کورٹ ہے تو اس کو میجسٹریل کورٹ اس کو جو ہے اس کا ٹرائل کرے گی، اور وہ جو میجسٹریل کورٹ جو ٹرائل کرے گی وہ پروسیجر 20 یہ جو ہے جو کہ سیکشن 241 سے لے کر 250 تک ہے، یہ اس سے ڈیل کرتا ہے کہ پھر میجسٹریٹ کی کورٹ کون سا پروسیجر اڈاپٹ کرے گی while conducting a criminal trial of an alleged accused۔ تو سب سے پہلے ریلیونٹ آرٹیکل میں نے بتا دیا کہ سیکشن 241 سے 250 تک ہے۔ سیکشن 241 پہلا جو اس کا سیکشن ہے 241، وہ کہتا ہے کہ پروسیجر ان ٹرائل آف کیسز، کہ میجسٹریل کی عدالت میں جو ٹرائل ہوں گے ان کا پروسیجر کیا ہوگا۔ The following procedure shall be observed by magistrate in the trial of cases۔ 241 نے یہ کہہ دیا کہ 241 کے بعد فالوئنگ نیچے جتنے بھی سیکشن 250 تک ہے یہ پروسیجر اڈاپٹ کرے گی میجسٹریٹ کورٹ ایز اے ٹرائل کورٹ۔ سب سے پہلے سیکشن 241A ہے جو کہ سپلائی آف اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈاکومنٹس ٹو دا ایکیوزڈ، کہ جیسے ہی کوئی پولیس رپورٹ پر ایف آئی آر پر مقدمہ درج ہوتا ہے، اور جب اس کی 173 کی رپورٹ
जिसको उर्फ आम में चालान कहते हैं, जब अदालत में दाखिल होता है तो आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट, तो उसमें मैजिस्ट्रेट जो है वो सबसे पहले कॉपीज को सप्लाई करता है कि उसमें जो गवाहान के 161 के बयानात हैं, अगर किसी के गवाह या विक्टिम या मजरूब का 164 का बयान है, किसी मैजिस्ट्रेट की अदालत में कलम बंद हुआ है, और एनी विटनेस स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 164 का बयान है, तो उसकी कॉपी भी दी जाएगी। इसी तरह बाद अज वकुआ, जब पुलिस मौके पर पहली दफा जाती है और वहां जाकर पुलिस जो अपना इंस्पेक्शन नोट लिखती है जाए वकुआ के बारे में, अलेज्ड ऑफेंस के हालात व वाकयात के बारे में, तो उस इंस्पेक्शन नोट की भी कॉपी मुल्जिम को दी जाएगी। और इसमें यह भी लिखा है कि ये कॉपीज उसको मुल्जिम को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी और नॉट लेस देन 7 days बिफोर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज ये उसको कॉपीज प्रोवाइड की जाएगी। तो सेक्शन 241 सिंपली यही कहता है कि चार्ज फ्रेम होने से, कॉग्निजेंस लेने के बाद और चार्ज फ्रेम होने से कम अज कम 7 दिन पहले, फॉर्मल चार्ज फ्रेम होने से कम अज कम 7 दिन पहले मुल्जिम को 161 के बयान, 164 का बयान और इसी तरह इंस्पेक्शन नोट और चालान और विटनेसेस के शेड्यूल की कॉपीज उसको फराहम की जाएंगी, ताकि उसे पता चल सके कि प्रोसिक्यूशन ने उसके खिलाफ कौन सा केस किस जुर्म के तहत और किन हालातों वाकयात के तहत बनाया है, जिसका मुल्जिम ने डिफेंस लेना है, जो उसका राइट है कानूनी। उसके बाद सेक्शन 242 है, नेक्स्ट स्टेप होगा चार्ज टू बी फ्रेम्ड। फिर अदालत मैजिस्ट्रेट तमाम तर दस्तावेजात जो कि चालान के साथ हैं, जो पुलिस डायरीज हैं, जो पुलिस मिसल है, उसका भी मुआयना कर सकती है, और जो जुडिशियल फाइल है उसमें भी जो जितना मवाद है, जो एविडेंस है, और उसमें कंसर्न प्रोसिक्यूटर की रिपोर्ट जो है 97 की रिपोर्ट, प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006 की रिपोर्ट, कि क्या खुद प्रोसिक्यूटर ने भी रेकमेंड फॉर एंड फिट फॉर ट्रायल की रिपोर्ट दी है या नहीं। और इसी तरह आईओ ने, पुलिस ने तफ्तीश के दौरान कौन से मुल्जिम को 173 की रिपोर्ट के किस खाने में चालान किया, ये तमाम वाकयात देखने के बाद अदालत जब कॉग्निजेंस लेती है तो फिर सेक्शन 241 के तहत जो ऊपर हम पढ़कर आ रहे हैं कि वो कॉपीज फराहम करती है डॉक्यूमेंट्स की मुल्जिम को फॉर्मल चार्ज फ्रेम होने से कम अज कम 7 दिन पहले, और उसके बाद मुल्जिम के ऊपर चार्ज फ्रेम किया जाता है। जिस तरह हमने अपनी सीआरपीसी की जो सेक्शन 4 की लेक्चर की सीरीज हमने बनाई, उसमें हमने इसमें सेक्शन 4 में चार्ज को भी डिफाइन किया था और पढ़ने और समझने की कोशिश की थी कि अ प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ एक्यूजेशन एज लेवल्ड बाय द प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द अलेज्ड ऑफेंस। तो इसी तरह वो प्रिसाइज एक्यूजेशन उससे बताई जाएगी और उससे 3 बुनियादी सवाल पूछे जाएंगे कि क्या आप ये चार्ज फर्द जुर्म, चार्जशीट फर्द जुर्म आपने सुन लिया है, समझ लिया है, क्या फलां तारीख को इतने बजे इस थाने की हदूद में या फलां थाने की हदूद में आपने फलां के साथ फलां जुर्म कमिट किया, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उसके बाद अगला अहम सवाल होगा कि क्या आप इस जुर्म को तस्लीम करते हैं, डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट। उसके बाद हम देखते हैं अगला स्टेप इंपॉर्टेंट आता है सेक्शन 243, कन्विक्शन ऑन एडमिशन ऑफ ट्रूथ ऑफ एक्यूजेशन। कि जिस तरह हमने कहा कि 242 में जब मैजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा
तो उससे सवाल भी करेगा कि क्या तुम प्लीड गिल्टी करते हो। अगर वो अपने जुर्म का इकरार कर लेता है, उसका एडमिशन कर लेता है, उसको तस्लीम कर लेता है, तो फिर मैजिस्ट्रेट उसको शोकाज नोटिस इशू करेगी कि व्हाई यू शुड नॉट बी पनिश्ड ड्यू टू एडमिशन एज बिफोर द कोर्ट। तो अगर वो उस शोकाज नोटिस का सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देता तो फिर अदालत उसको 243 सीआरपीसी के तहत उसी वक्त सजा दे सकती है। और अगर अदालत ये नहीं करती, बल्कि इसमें अदालत को डिस्क्रिशन भी दी गई है कि अगर या तो मुल्जिम एडमिशन करे और अदालत उसे तस्लीम न करे, एविडेंस मांग ले, ये अदालत की डिस्क्रिशन है। और अगर मुल्जिम खुद एडमिशन ही ना करे तो फिर अदालत एविडेंस टेक करे लेगी, जितनी भी शहादत होगी मुल्जिम देगा, उसके पहले प्रोसिक्यूशन देगी, उसके बाद फिर जाकर मेरिट पर फैसला होगा और अदालत फैसला देगी कि क्या वाकई ही मुल्जिम ने जुर्म कमिट किया है या नहीं। तो इस तरह हम अब अगला देख रहे हैं सेक्शन। नेक्स्ट स्टेप जो मैजिस्ट्रियल ट्रायल में है वो है सेक्शन 244 का, प्रोसीजर व्हेन नो सच एडमिशन इज मेड। अगर फर्द जुर्म के जवाब में वो ये तस्लीम नहीं करता अपना जुर्म और कहता है कि मैं ट्रायल सीक करता हूं, मैं इस मुकदमे को कंटेस्ट करूंगा, तो फिर अदालत जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। उसमें प्रोसिक्यूशन से एज पर लिस्ट ऑफ विटनेसेस, कॉलम ऑफ विटनेसेस एज मेंशन इन रिपोर्ट 173 ऑफ द सीआरपीसी, उसके मुताबिक अदालत गवाहान को भी तलब करेगी और केस प्रॉपर्टी को भी तलब करेगी और उसके बाद फिर मुल्जिम को कहेगी कि क्या आप भी कोई डिफेंस में एविडेंस देना चाहते हैं। अगर वो देना चाहता है तो फिर उसकी डिफेंस एविडेंस होगी और फिर खुद मुल्जिम से ये सवाल भी पूछा जाएगा 340 की सब क्लास 2 के तहत कि क्या तुम खुद अपनी शहादत ऑन ओथ देना चाहते हो फॉर डिसप्रूविंग द एलिगेशन एज लेवर्ड प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। तो अगर मुल्जिम ये देना चाहे तो दे, अगर नहीं देना चाहता तो कोई कंपल्सरी नहीं है। वो ऑन ओथ बयान नहीं देता और अक्सर केसों में नहीं देता ऑन द एडवाइस ऑफ हिज एडवोकेट, क्योंकि अगर वो ऑन ओथ बयान देगा तो फिर वो क्रॉस एग्जामिनेशन को भी फेस करेगा। तो इस तरह वो अमूमन नहीं देता और अदालत जो एविडेंस रिकॉर्ड करेगी उसके लिए भी सीआरपीसी में ये सेक्शन आपने जरूर देखने हैं, 354, 355 और इससे 353 भी मिला लें, क्योंकि इसमें यह है कि एविडेंस मस्ट बी रिकॉर्डेड बिफोर द प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड। उसकी कोई एक्सेप्शन है कि 512 में ट्रायल इन एब्सेंशिया हो जाता है और मुल्जिम की अदम मौजूदगी में भी एविडेंस हो जाती है। अदरवाइज जनरल प्रिंसिपल यही है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 353 ऑफ द सीआरपीसी, 353 ऑफ द सीआरपीसी, कि शहादत जो है वो मुल्जिम की मौजूदगी में रिकॉर्ड होगी। और इसी तरह 354, 355, 356 और 357 और इसी तरह फिर 359 में मोड एंड मैनर है कि किस तरह रिकॉर्ड होगी। ये भी रेलिवेंट सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि फिर अगर मैजिस्ट्रियल अदालत में ट्रायल के दौरान एविडेंस शुरू होती है तो वो एविडेंस का क्या तरीका होगा, किस तरीके से वो एविडेंस रिकॉर्ड होगी, उस बारे में ये सेक्शन डील करते हैं। तो अगला स्टेप होगा 244 से स्टेटमेंट मेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी। Section 164 of the CRPC is very important because this statement having two kinds. One statement is called as confessional statement by the accused regarding alleged offense, and the other statement can be made by any witness or complainant or any party of the matter in dispute.
तो अदालत 164 के बयान को भी कंसीडर कर सकती है और उस वक्त तक अगर 164 का बयान देने वाला गवाह जिंदा नहीं है तो फिर इसी 164 के बयान को ही कंसीडर किया जा सकता है और कार्रवाई का अमल आगे बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 245(1) जिसमें एक्विटल होगी कि एविडेंस रिगार्ड होती है और अगर एविडेंस सफिशिएंट नहीं होती, जो कि एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है कि इट इज ऑलवेज द ड्यूटी ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस अगेंस्ट द अलेज्ड अक्यूज्ड बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट, कि मुलजिम के खिलाफ इस्तगासा में बगैर किसी शक के और सर्टनली उसके खिलाफ केस साबित करना है। अदरवाइज इवन अ स्लाइटेस्ट अगर डाउट क्रिएट होगा तो वो मस्ट बी गोज इन फेवर ऑफ द एक्यूज्ड और शक का फायदा मुलजिम को मिलेगा। और इस प्रिंसिपल जो हमारी जूरिस्प्रूडेंस का हिस्सा है, इसको सपोर्ट शरिया लॉ से भी मिलती है कि हॉली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो अब उसका 245 का सब क्लास 2 ये कहता है कि अगर एविडेंस काफी है और प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट केस साबित कर दिया है तो फिर अदालत 245(2) के तहत कन्विक्शन या सेंटेंस दे सकती है। उसके बाद अब हम देखेंगे 245(a) जो कि प्रोसीजर इन केस ऑफ प्रीवियस कन्विक्शन के 245(a) सेक्शन ये कहता है कि जो इस मुलजिम का ट्रायल मैजिस्ट्रेट के पास चल रहा है, अगर उसको प्रीवियस कन्विक्शन होगी तो इस बात का चार्ज में भी जिक्र किया जाएगा और उसकी सजा को इनहांस भी किया जा सकता है। और सेक्शन 246 जो है ये लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 1972 के तहत रिपील हो गया है, ओमिटेड हो गया है। अब सेक्शन 247 देखते हैं, नॉन अपीयरेंस ऑफ कंप्लेनेंट, कि अगर कंप्लेनेंट हाजिर नहीं आता, मुस्तगीज हाजिर नहीं आता, तो अदालत में जो प्राइवेट कंप्लेंट चल रही होगी, जो प्राइवेट इस्तगासा चल रहा होगा, जो मुस्तगीज की तरफ से दायर होता है, वो पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक नहीं होता। पुलिस रिपोर्ट पर एफआईआर पर जो मुकदमा दर्ज होता है उसे स्टेट केस कहते हैं और उर्फ आम में चलानी केस कहते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब वही पुलिस उस मुस्तगीज का मुकदमा खारिज कर देती है तो फिर कानून उसी मुस्तगीज को ये रेमेडी भी देता है कि वो अदालत में जाए, अपना बयान कलम बंद भी कराए, ऑन ओथ कर्सरी एविडेंस में जितनी भी गवाही देना चाहे दे, और अदालत उसके बाद अगर समझती है कि प्रिमा फेशिये ऑफेंस मेड आउट होता है तो वो मुल्जमान को तलब करके उसका ट्रायल फुल फ्लेज कर सकती है। एंड आफ्टर एविडेंस ऑफ बोथ द पार्टीज देन द केस वुड बी डिसाइडेड इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। तो हमने इसमें ये देखा कि आर्टिकल 247 में जो कि प्राइवेट कंप्लेंट को डील कर रहा है, चलानी केस को डील नहीं कर रहा, उसमें अगर एक मुस्तगीस आकर इस्तगासा दायर कर देता है जिसमें वो किसी 4 आदमियों के खिलाफ इल्जाम लगाता है और कर्सरी एविडेंस में अपनी गवाही और 2 और गवाहान भी दे देता है और इसी तरह कुछ दस्तावेजात भी जमा करवाता है, लेकिन अगली पेशी पर जब बहस होनी होती है तो वो गैर हाजिर हो जाता है, ना ही उसका वकील आता है और ना ही मुस्तगीस आता है। तो यहां पर तो मुस्तगीस की हाजिरी जरूरी है। जब तक 204 के तहत मुल्जमान का प्रोसेस इशू ना हो, मुल्जमान की तलबी ना हो, तो इस्तगासा स्टेट केस नहीं बनता, और जैसे ही मुल्जमान की तलबी बन जाती है तो इस पर भी व्यू है कि वो स्टेट केस बन जाता है। और इसमें अहम बात याद रखने वाली ये है कि सेक्शन 247 जो है वो कॉग्निजेबल केस होगा या अगर नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस के बारे में होगा, केस के बारे में होगा, तो उस पर सेक्शन 247 अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरह हमने अब ये देखना है कि सेक्शन 248 है वो किससे डील करता है, वो विथड्रॉल ऑफ कंप्लेंट है। जो ऊपर हमने प्राइवेट कंप्लेंट की बात की, जो मुस्तगीस आकर अदालत में किसी के खिलाफ मुकदमा फौजदारी दर्ज करवाने के लिए इस्तगासा करता है, उसको सजा करवाने के लिए
استغاثہ کر کے اس کا ٹرائل کرواتا ہے ملزم کا، تو اس کو یہ حق ہے کہ وہ کسی بھی وقت کسی بھی ملزم کے خلاف بٹ ود دا پرائر پرمیشن آف دا میجسٹریٹ وہ اپنا استغاثہ وڈرا کر سکتا ہے، اس سے دستبردار ہو سکتا ہے۔ اب ہم نے اور اگر وہ استغاثہ میں آئے گا اور دستبرداری کرے گا تو پھر جو ہے عدالت ہے، میجسٹریٹ، وہ اوپر والے کیس میں بھی کہ جب نان اپیرنس آف دا کمپلینٹ ہے استغاثہ خارج ہو جائے گا اور جو ملزم کو ریلیز کر دیا جائے گا ود آؤٹ آرڈر آف کنوکشن آر ایکویٹل، اور اسی طرح جب سیکشن 248 کے تحت وڈرال ہو جائے گی تو پھر اگر مستغیث نے آ کے استغاثہ واپس لے لیا جس ملزم کے خلاف تو پھر اس کیس میں ملزم کی بریت تصور ہوگی، اس کی ایکویٹل ہوگی اور عدالت یہ بات لکھے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیکشن 249 پاور ٹو سٹاپ پروسیڈنگز وین نو کمپلیننٹ، کہ اگر کمپلیننٹ نہیں ہے، ایویڈنس نہیں آ رہی تو میجسٹریٹ کورٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مقدمے کی کارروائی کو سینیٹائی ارجن کر سکتی ہے ٹل دی ارائیول آف دا وٹنسز، اور جب وٹنسز دوبارہ آتے ہیں پھر دوبارہ کیس بحال ہو کر طلبی مثل پر کال ہو کر دوبارہ سماعت ہوتا ہے۔ لیکن اگر کافی اپرچونٹیز دینے کے باوجود بھی مستغیث اور گواہ حاضر نہیں آ رہے، پراسیکیوشن پیش نہیں کر رہی، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے، اینڈ دیٹ از وائی وہ کورٹ جو ہے اس کی کارروائی کو سٹاپ کر دیتی ہے۔ تو آخری جو ہمارا پوائنٹ ہے اس میں وہ سیکشن 250 ہے، دیٹ از ویری امپورٹنٹ، کہ فالس اینڈ ویکسیشیس ایکوزیشن، کہ جب عدالت تمام فل فلیج ٹرائل میجسٹریٹ کورٹ کرنے میں جب کامیاب ہوتی ہے تو آخر میں اسے یہ بھی اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ استغاثہ جھوٹا کیا گیا تھا یا پولیس کی طرف سے چلانی کیس یا اسٹیٹ کیس جھوٹا ویکسیشیس اور فالس پایا گیا ہے، ثابت ہوا ہے، تو وہ 50,000 روپے تک اس پر جرمانہ بھی عائد کر سکتا ہے۔ تو یہ جرمانے کی ریشو عام طور پر بہت تھوڑی رکھی جاتی ہے اور ویسے کیا نہیں جاتا۔ اگر اس جرمانے کی سزا کو بھی بڑھا دیا جائے اور اسی طرح تمام عدالتیں اس پرنسپل کو اسٹرکٹلی لاگو کرنا شروع کر دیں تو کافی حد تک جھوٹی، فالس اینڈ فریولس جو لٹیگیشن ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ جو لیکچر ہے وہ انجام کو پہنچا، کہ کیونکہ آج کے ہم اس لیکچر میں ہم نے میجسٹیریل کورٹ کا پروسیجر دیکھا جو کہ سیکشن 241 سے 250 تک ہے، اور امپورٹنس اس کی بھی میں نے بتائی ہے کہ LLB سے لے کر کسی بھی کمپیٹیٹو ایگزام اور آنے والے دنوں میں سول جج اور ASJ کے ایگزام میں CRPC کا پیپر ہو اور ان سیکشنز میں سے کوئی سوال نہ آئے، ایون ملٹیپل چوائس کویسچن، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔